Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday you have seen the expansion of the solid. In the solid, we have seen the solid material which are rod in shape or which are wires. In them, there is a linear expansion. Okay, and those substance which are is two-dimensional and in the form of the sheet, so there is the aerial expansion. Okay, and those substances which are is three-dimensional like cylinder, like sphere, so there is a volumetric expansion. So what we have seen in last lecture, that yes, the solid show the three type of the expansions: linear expansion, aerial expansion and volumetric expansions. Okay, ये तीन टाइप के चीजें हमने देखा. Now yes, we have to see now that expansion of the gases. When the gases are heated, the which type of the expansion takes place? Now we know that these gases do not have the definite shape. Gases का definite shape नहीं होता. ये हमने पहले ही स्टडी किया लोअर स्टैंडर्ड में कि क्या नहीं होता है. ये जो गैसेस होते हैं उनके क्या नहीं होते, डेफिनेट शेप्स नहीं होते. तो वहाँ पे क्या होगा, ये किस टाइप के चेंजेस होंगे, दैट वी हैव टू सी. Now yes, expansion of the liquids. Expansion of the liquid, then we will see the about the gases. A liquid does not have a definite shape, but it has the definite volume. So we can define a volumetric expansion coefficient for the liquid as follows. अब देखो, ये लिक्विड में लिक्विड का क्या डेफिनेट शेप नहीं है, तो वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली हियर volumetric expansion is possible, means when it is heated there is a expansion in the volume. Okay, now see, yes, the expansion coefficient for the liquid is V2 is equals to V1 in bracket 1 plus beta delta T. So where B2 is the final volume and V1 is the initial volume, and plus 1 plus beta, beta is the coefficient of the volumetric expansion into delta T. Delta T is the change in temperature. So here delta T is the change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volume of the liquid, and B is the volumetric expansion coefficient of the liquid. Use your brain power. Which use of the expansion of liquid in daily life do you know? कौन सा यूज लिक्विड के एक्सपेंशन का डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं? मतलब कि क्या है, हीट करने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. इस इस प्रॉपर्टी का यूज हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं? तो द इफेक्ट if the heat on water is somewhat different from that for the other liquid, this is called the anomalous behavior of the water. We are going to learn about in the higher standard. तो yes, ये इसका आंसर अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि what happens generally when the yes liquids, when liquid, solid and gases when heated there is a expansion. But what happens about the water, जो पानी है, तो when they are heated from the 0 degree Celsius, so at 0 degree Celsius that yes, yeah, that start melting. Okay, if it is in ice, if it is in solid state, and when the temperature increases, that liquid water, okay, instead of increasing volume its volume decreases. जैसे कि हर एक लिक्विड, हर एक सॉलिड, हर एक गैसेस को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है. बट yes, in case of the water के केस में when the water is heated, तो initially at 1 degree Celsius, at 2 degree Celsius, at 3 degree Celsius, at 4 degree Celsius, the volume of the yes that water decreases. तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के बदले में डिक्रीज होता है. एंड व्हेन द वॉल्यूम yes decreases, तो its density increases. वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा. एंड एट 4 degree Celsius द volume is least and density is the highest. Okay, and after the 4 degree Celsius
the volume start increasing. So this behavior of water is called as the anomalous behavior of water. तो इसको हम anomalous behavior of water कहते हैं. तो ये anomalous behavior of water की वजह से जो aquatic living things है, जो पानी में रहने वाले animals और plants है, दे सर्वाइव, तो वो क्या करते, जिंदा रहते इन विंटर सीजन इन द कोल्ड रीजन. अब तुमने न्यूज़ में देखा होगा कि ये न्यूज़ में कि जो अभी जो है पेंगोंग झील जो है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास जो है पेंगोंग पेंगोंग झील है, जिसके ऊपर क्या है, ये डिस्प्यूट चल रहा है. तो वो पेंगोंग झील जो है, यस वहाँ पे टेम्परेचर यस -10 -13 डिग्री सेल्सियस है. तो पेंगोंग जो झील है, लेक है, वहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा नदी ऊपर से जम गई है. मतलब कि जो नदी में बहने वाला वाटर है वो फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो गया है. तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया. वहाँ पे जो है इस तरह का कंपटीशन चलता है. वहाँ पे ये उसके ऊपर स्पोर्ट्स किए जाते हैं और साइड से क्या है, थोड़ा पानी बहते रहता है और साइड से पूरी नदी क्या होती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है. तो अब जो आइस में कन्वर्ट हो गया, ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. बट अंदर जो लिविंग थिंग्स है, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो फ्रीज हो जाते नहीं है. अगर वो फ्रीज हो जाएंगे तो दे विल किल, क्योंकि यस दे अनेबल टू टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन. बट क्या होता है कि जो अपर लेयर का वाटर है वो सॉलिडिफाई होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है. बट नीचे जो पानी रहता है वो पानी जो है ये यस लिक्विड स्टेट में रहता है. तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से है. इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल यस उनको नेचर ने यस क्या है, गॉड गिफ्ट के फॉर्म में दिया है. इसलिए जो विंटर सीजन में भी ऊपर आइस जमने के बाद, और डल झील जो क्या है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो डल झील है, वहाँ पे भी वो भी क्या होती है, बर्फ से ढक जाती विंटर सीजन में, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता. फिर भी उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव करती है. तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, ओके, इसका यूज वहाँ पे होता है. एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. ए गैस डज नॉट इवन हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है. तो गैस एक्सपांड ऑन हीटिंग, बट इफ द गैस इज केप्ट इन द क्लोज बॉक्स, गैस भी एक्सपांड होता है हीट करने पे, बट अगर उसको क्लोज बॉक्स में ले, कंटेनर क्या करे, ऊपर से सील्ड हो, पैक हो, तो इट्स वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीजेस बट इट्स प्रेशर इंक्रीजेस. तो क्या होता है, ये इन केस ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो गैस को हीट करने से वो एक्सपांड होता है. बट व्हेन वी टेक इन द कंटेनर, जब हम उसको कंटेनर में लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, बट इट प्रेशर इंक्रीज है, लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज होता है. नाउ यस ऑब्जर्व द फिगर 14.7 एंड फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे फिगर 14.7 है. अब क्या करना है, फिगर 14.7 का हम लोगों को आंसर करना है. नाउ सी द यस 14.7 इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द गैस. फिक्स्ड पिस्टन. अब यहाँ पे ये क्या है, पिस्टन. जैसे कि हम लोगों ने देखा है, ये जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी रहती है, तो वैसा यहाँ पे क्या है, कुकर प्रेशर के ऊपर सीटी की तरह यहाँ पे पिस्टन लगा है. ओके, नाउ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल. और ये मूवेबल पिस्टन से, यहाँ मूवेबल पिस्टन से दिखाई दे रहा है. यहाँ पे पिस्टन क्या है, ये इस पोजीशन पे है. यहाँ पे देखो इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है. सेकेंड वाले फिगर में क्या हो रहा है, ये पिस्टन यहाँ नेक पे है, तो यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन थोड़ा सा नेक के ऊपर है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग द गैस, जब हम गैस को हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो यस देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रेशर. ओके, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है. तो इंक्रीज होता है तो क्या होगा, यस दैट प्रेशर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर दैट पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन. तो पिस्टन क्या होता है, यस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ मूव होता है. तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला density is equals to mass upon volume, explain what will be the effect of heat on the gas kept in a closed bottle. अब क्या बोला है कि using the formula mass upon volume, explain what will happen if the heat is given to that gas and it is kept in the closed bottle. अगर closed bottle में उसको रखा है तो. If the bottle is not closed, और अगर bottle close नहीं है but has the movable piston,
तो यस मूवेबल पिस्टन है तो क्या होगा, तो मूवेबल पिस्टन होगा तो क्या होगा, प्रेशर अंदर इंक्रीज होगा, डिस्टेंस बिटवीन द गैसेस विल इंक्रीज and the yes that will exert pressure on the piston, and because of that that piston move okay in upward direction. What will be the effect of heating the gas in the bottle? So therefore expansion of gas is measured by keeping its pressure constant. This volumetric expansion coefficient is called constant pressure expansion coefficient and given by the following formula. अब यहाँ पे क्या लर्न किया हम लोगों ने कि जब हम लोग इसको क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो क्या है, ये उसको हीट करते हैं तो उसका क्या इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. तो दिस वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू V1 in bracket 1 plus beta delta T. Here delta T is the changing temperature and V1 and V2 are the initial and final volume of the gas at a constant pressure. बीटा इज द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस. अब बीटा जो यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस है. द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग. विच ऑफ द पिक्चर इन द फिगर 14.1 मेक्स यूज ऑफ दिस. अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, तो नाउ यस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. यस, इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स आस्क टू मी. यस, किसी को इसमें कुछ डाउट्स है स्टूडेंट? यस, नाउ फर्स्ट यू अनम्यूट योर सेल्फ. किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें? यस स्टूडेंट, इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स हियर? Okay student, now yes I will send the question answer later on. Now yes we have completed lesson number 14. Okay, now yes see the lesson number 15 sound. अब क्या देखना है हम लोगों को? लेसन नंबर 15.